Shall I ask the questions on the topic what I taught yesterday? Can you attempt? Can you try to answer? Yes, children, tell me. Okay. Just a moment, huh, children. कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं ना, उनके लिए लिंक भेजना है. जस्ट होल्ड ऑन. Yeah. So, have you noted down that name, polynomial nomenclature? By the way, when it was there in the use, this polynomial nomenclature was in the use before what? Urvashi? Do you remember that? Since when this polynomial nomenclature is in the use? It was used before 1750. Great, very good. All right, and do you remember the name of that plant we discussed about polynomial nomenclature? Anybody remember that? उपमन्यु याद है क्या? एक लंबा चौड़ा नाम था. Have you noted down that? Yes. उपमन्यु. Nah, re, not that. Maize plant. No. Anybody else want to try? Urvashi, have you noted down that name of the plant I told yesterday for a polynomial nomenclature? No? No. Yes, Urvashi, tell me. No? It's okay now. If you have not noted down, I will tell now also. Hello, Ashna. How are you? How are you doing? Where is Mohammed and one more your friend? What is her name? Ashna? सुन रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ? Are you able to hear me, Ashna? Mohammed किधर है? He hasn't joined. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. So I was asking you the name of that plant. That means you people are not writing down the things whatever there on the board. Is that so? ऐसा है क्या? आप लोग लिख नहीं रहे हो जो बोर्ड पे है वो? बोलो बच्चों. या मोहम्मद ने ज्वाइन किए हैं अभी. हेलो मोहम्मद. चलो जरा अपना चेहरा दिखाओ बच्चा. कैसे हो? Just turn on your camera. I want to see you. मोहम्मद सुनाई दे रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? और बीच में गायब हो जाते हो. हेलो. Not this as attractive Indika. Good to see you, मोहम्मद. और अभी लास्ट तक रहने के लेक्चर में बीच में गायब नहीं होने का. समझ में आया क्या मोहम्मद? लास्ट तक रहने का लेक्चर में, ठीक है? समझ में आ रहा है जो पढ़ रहे हो? आर यू कंफर्टेबल विद दिस व्हाटएवर वी आर लर्निंग? बोलो बच्चा, समझ में आ रहा है बराबर से सब कुछ? यस सर. बेटा सब सर. ठीक. किसी को भी याद नहीं है जो मैंने कल एग्जांपल बोला था? एंड दिस इज नॉट a good thing. I'm writing that name here. हाँ, Caryophyllum. Correct. Very good उपमन्यु. ये वाला मैं पूछ रहा था. Caryophyllum saxatilis pollis था. और भी आगे कुछ था उसके. क्या था वो? Caryophyllum saxatilis pollis germinatus umbellus coryambis. ये उसका पूरा नाम था. बाकी लोगों को भी मालूम होना चाहिए. You all should remember that name. Send it to all करो. Let other people also see that. Ashna, you also have not noted down this name. ये वाला जो
पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर का एग्जांपल था. आशना, हैव यू रिटन दैट? बोलो बच्चा. एक और वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं है क्या? फ्रेंड या कजिन है? शी हैजंट जॉइंड. चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं. आशना इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. क्या प्रॉब्लम है? सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज नहीं आ रही मेरी. आशना चलो, हमने कल स्पीसीज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था. टेल मी, यू वांट टू टीच मी हियर ऑन दैट व्हाइट बोर्ड और अ स्क्रीन शेयर? चॉइस इज योर्स. बोलो बच्चा लोग, कहाँ पढ़ाऊं? यू आर कंफर्टेबल हियर ऑन द स्क्रीन? So whiteboard, please. या श्योर. ठीक है, होल्ड ऑन, आई जस्ट टेक द कैमरा. ओके, सो इज इट कंफर्टेबल? दिख रहा है बराबर से बोर्ड आप लोगों को? शैल वी स्टार्ट? या इज इट ओके? कंफर्टेबल एवरीवन? शुरू करें अभी हम लोग. यश, आर यू रेडी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So we were talking about category and taxon. Yesterday हम लोगों ने शुरू किया था. थोड़ा बहुत आप लोगों ने 9th standard में पढ़ा है उसके बाद. If you all remember, little bit of that you have already studied in your 9th standard. याद है ना categories? उसका कल मैंने एक mnemonic भी बोला था, ट्रिक भी बताया था. क्या था वो mnemonic to remember those all categories? याद करो. आशना, today you are not involving in discussions, participations. क्या था वो mnemonic? Same mnemonic I had told you in your 9th standard also, if you remember. What was that? बोलो बच्चों. क्या था वो? Keep pots clean, ये वाला. Pots clean or family gets sick. Very good. Keep pots clean or family gets sick. Or family gets sick. ये था वो mnemonic. और हर एक का ये नाम है, आप लोगों को पता है. ऑर्डर इसका कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, स्पीसीज से लेके किंगडम तक. स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम. फाइलम के बदले यहाँ पे डिवीजन भी हो सकता है. डिवीजन इज फॉर प्लांट्स, फाइलम इज फॉर एनिमल्स. एम आई राइट? बराबर है ना बच्चों? तो आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट. वो वाला नाम वापस से मैं लिख रहा हूँ, कैरियोफाइलम वाला. कैरियोफाइलम सैक्सालिस पॉलिस जर्मिनियस, ये वाला नाम है पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर का. कैरियोफाइलम सैक्सालिस, कैरियोफाइलम सैक्सालिस पॉलिस, सैक्सालिस पॉलिस. आगे क्या? Gramineous umbilical. Gramineous umbilical. और लास्ट वर्ड था उसमें कोरियम्बिस. ये है वो पूरा नाम. I hope you can see the whole board, right? Comfortable है सब लोग? So the whole name of the plant was this: Caryophyllum Saxcalis Pollis, Gramineous umbilical, Corymbus. ये बहुत लंबा नाम था, डिफिकल्ट था, इसलिए इसको भी, ये मेथड भी आउटडेटेड है. एंड द मेथड व्हाट वी लर्न नाउ इज अबाउट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. ठीक है बच्चों? कंफर्टेबल हैं सब लोग? या वेरी गुड. एक और भी mnemonic मैंने बोला था,
उपमन्यु याद है क्या वो कौन सा निबोधिक था? इट वाज अबाउट सौरभ गांगुली's family ordered चावल दाल कबाब, याद है? सौरभ गांगुली's family ordered चावल दाल कबाब. Do you remember this? ये भी मैंने बोला था, याद रखना है उसको. चलो कोई बात नहीं. We had started with this part. Species का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इनको इन सब चीजों को तो क्या बोलते हैं जो वर्ड्स हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर वगैरह वगैरह, इन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं कैटेगरीज. और इसके सामने जो हम लोग लिखेंगे, जैसे व्हेन यू से किंगडम प्लांटे, तो वर्ड प्लांटे मतलब टैक्सॉन होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. एंड दिस किंगडम वर्ड क्या है? किंगडम इज ए कैटेगरी व्हिच इज अ पोजीशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. टैक्सोनॉमी में उसका वो पोजीशन होता है. तो हम लोग अभी ये वाला टॉपिक शुरू किए थे कल. आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज. ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस बताए थे. इसमें से जो सबसे एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, एक्सेप्टेबल डेफिनेशन जो है स्पीसीज का, वो कौन दिया था? याद करो बच्चों. हु गेव द डेफिनेशन? मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ स्पीसीज वाज गिवन बाय Yes, Ernst Mayr. Very good. Ernst Mayr. ये थे जिन्होंने एक डेफिनेशन दिया था स्पीसीज का. और वो डेफिनेशन क्या है? स्पीसीज इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ, क्या होता है ये? ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर. मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नल. मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स. Morphologically similar individuals. ठीक है, capable of, और आगे सुना मुझे, capable of reproduction. interbreeding, एक दूसरे के साथ में मेट कर सकते हैं. capable of interbreeding to produce fertile offspring. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. capable of interbreeding to produce fertile offspring. तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के जैसे दिखते हैं मॉर्फोलॉजिकली, मतलब उनका लुक सिमिलर होता है. then they are capable of interbreeding. interbreeding का मतलब क्या होता है? they can mate among themselves. एक दूसरे के साथ में वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. और कंडीशन ये है कि उनका जो ऑफस्प्रिंग होना चाहिए वो फर्टाइल होना चाहिए. The offspring produced by them should be fertile. Fertile मतलब क्या होता है बच्चों? बताओ मुझे. If I say the word fertile, what do you mean by that? The offspring can also reproduce. Exactly. That offspring should also be able to continue the race, continue the generation. ये भी अपना generation continue. सर जो स्टेराइल होता है वो नहीं होता? हाँ, क्या बोल रहे हो? जो स्टेराइल हो जाता है वो नहीं होता? करेक्ट है. तो उसका एग्जांपल भी बोला था मैंने, इफ यू रिमेंबर, कि ट्रू स्पीसीज कौन है और ट्रू स्पीसीज कौन नहीं है. कल हमने पढ़ा था म्यूल. याद आया ये वाला? यू रिमेंबर दिस म्यूल? यस ये सर. इसको हिंदी में हम लोग खच्चर बोलते हैं. आप लोगों ने देखा भी होगा. हैव यू सीन दिस म्यूल? एवरीबॉडी? उर्वशी, नहीं देखा है? एक्चुअली पहाड़ी इलाकों में लोग इनको जानबूझ के ब्रीड कराते हैं, मतलब इनको डेवलप करते हैं बिकॉज दे कैन कैरी हेवी लोड्स. अपने पीठ पे ज्यादा वजन कैरी कर सकते हैं. तो पहाड़ के नीचे से पहाड़ के ऊपर तक उनके पीठ के ऊपर दे कैन पुट सम हेवी वेट्स. जो भी मटेरियल रहेगा कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये मे बी इट कैन बी सीमेंट, इट कैन बी रेती एटसेट्रा लाइक दैट. तो ये जानबूझ के इनको डेवलप किया जाता है, स्पेशली इन दोज एरियाज. ये भी बताया था मैंने किसका ऑफस्प्रिंग होता है. आई होप यू रिमेंबर दैट. इसमें मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स और फीमेल हॉर्स होती है. उल्टा किया तो क्या होगा? उसका ऑफस्प्रिंग क्या होता है? याद है ये भी? दिस आई टोल्ड यू यस्टरडे. ये भी स्टेराइल होता है. इससे भी नया जनरेशन नहीं बनता. पर यहाँ पे मेल हॉर्स होता है और फीमेल डोंकी होती है. Did you understand this?
पर जरूरी नहीं कि हर केस में जो हाइब्रिड बने वो स्टेराइल ही हो। आप लोगों ने कुछ नाम सुने होंगे, कल ये भी मैंने बोला था, इफ यू रिमेम्बर, कौन से वाले? लाइगर, लाइगर एंड टाइगॉन, ये फर्टाइल होते हैं। दीज आर आल्सो द हाइब्रिड्स। इनमें दोनों के कैरेक्टर्स दिखते हैं, लायन के भी और टाइगर के भी। इसमें जो पहला अल्फाबेट है वो मेल होता है, याद देखो। तो ये लाइगर में कौन मेल और कौन फीमेल? बोलो बच्चों। Lion male and female tiger. एंड टिग्रेस विल बी देयर, तो इनका हाइब्रिड होता है टाइगर, बट ये फर्टाइल है। यहाँ पे कौन? टाइगॉन में टाइगर इज मेल, लायनेस इज द फीमेल। Lion is female. टाइगॉन, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। बराबर है सब लोग? कंफर्टेबल विद दिस? यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, बराबर ना? हियर वी स्टडीड यस्टरडे, नाउ वी विल प्रोसीड। अब हम लोग एक और, इसमें मैंने एक क्वेश्चन बोला था या वर्ड बोला था कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि ये जो अर्न्स्ट मेयर है, ये इनको बोलते हैं हम लोग डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। डू यू रिमेंबर दिस? अर्न्स्ट मेयर को बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। Yes, sir. ये आपका नीट एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ऑलराइट, अब इन्होंने ये डेफिनेशन दिया था जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वाला डेफिनेशन। अब ये अगर हम लोग स्पीसीज की बात करें तो उनमें अलग अलग स्पीसीज हो सकते हैं एक ही जीनस के, है ना? एक जीनस में अलग अलग स्पीसीज हो सकते हैं। वन जीनस I'm sorry, children, my internet was interrupted. So let's continue. So what I was telling about this, not necessary that every time there will be single genus and a single species. There may be more than one species also. Okay, one genus may have more than one species also. Now we will be learning that in detail when we will talk about genus. जब हम लोग जीनस के बारे में बात करेंगे तो एग्जांपल्स में बता दूंगा आपको, फिलहाल इतना याद रख लो। So like simple example में when you talk about Panthera, Panthera is a genus, और इस Panthera genus में अलग अलग स्पीसीज आ सकते हैं, like Panthera leo, this will be your lion. Panthera tigris, this is going to be tiger. Panthera pardus, okay, this will be what? Panthera pardus किसका साइंटिफिक नाम है? Anybody knows this? Leopard. This is leopard का साइंटिफिक नाम है. So this is the scientific name of lion. देखो जीनस एक है, स्पीसीज अलग अलग. tigris मतलब this will be your tiger. Pardus मतलब it will be your leopard. तो ऐसे वन जीनस में है मोर देन वन स्पीसीज, या बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि एक ही जीनस एक ही स्पीसीज होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, होमो सेपियंस सेपियन। रिमेंबर साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स? बोलो बच्चों, याद है? होमो सेपियन। Yes, sir. तो ये होमो सेपियन सेपियन में होमो इज द जीनस, सेपियन सेपियन इज द स्पीसीज। तो इकलौता स्पीसीज हम लोग हैं जिनका जीनस होमो है, कोई और स्पीसीज है ही नहीं जिनका जीनस होमो से स्टार्ट होता है। तो ये दो टाइप्स हैं जो हम लोग इस टॉपिक से पढ़ने वाले हैं, फिलहाल ये याद रखो। नाउ अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स दिए गए थे, जैसे आप लोग कर यहाँ पे एक वर्ड पढ़ रहे हो, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मतलब जो एक्सटर्नली एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, उन स्पीसीज को हम लोग बोलेंगे मॉर्फो स्पीसीज। ओके, चला इरेज दिस पार्ट, टेल मी, ये वाला बोर्ड में इरेज करो, बोलो
Yes, sir. Have you noted down this? यस सर. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी अलग अलग टाइप के स्पीसीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, उसमें मॉर्फो स्पीसीज एक टाइप होता है. मॉर्फो स्पीसीज मतलब व्हिच लुक अलाइक. मॉर्फो स्पीसीज, तो ये मॉर्फो स्पीसीज का एक बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो रहेगा डार्विन फिंचेस. ऐसा कुछ सुना है आप लोगों ने? डार्विन फिंचेस बर्ड कभी सुना है क्या ऐसा कुछ? डार्विन के बारे में तो आप लोगों ने सुना है ना? यू हैव हर्ड अबाउट डार्विन? टेल मी. यस सर. फादर ऑफ एवोल्यूशन. डार्विन कौन है? फादर ऑफ एवोल्यूशन है. तो ये डार्विन ने क्या किया था? He had visited one island. Anybody knows what is the name of that island? क्या सुना है आप लोगों ने? थोड़ा बहुत सुना था मैंने 10th स्टैंडर्ड में. ये Galapagos Island, which is about 90 kilometer far from that South America. जो उसका मेन लैंड है वहां से 90 किलोमीटर दूर है. एंड इट्स अ ग्रुप ऑफ 22 आइलैंड्स. एक ह्यूज आइलैंड है जिसमें 14 मेजर आइलैंड्स है और 8 माइनर आइलैंड्स है. तो ये 22 आइलैंड्स का एक बड़ा ग्रुप है जिसको विजिट किया था डार्विन ने. और डार्विन के साथ में उनके कलीग थे अल्फ्रेड रसेल वॉलेस. ठीक है. और जब उन्होंने देखा वहां पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, स्पीसीज वगैरह, तो उसमें से एक स्पीसीज था जिन्होंने उनका ध्यान खींच लिया. वो थे कुछ बर्ड्स जिसको अभी हम लोग बोलते हैं डार्विन फिंचेस. अभी बोलते हैं मतलब इट वाज टर्म्ड बाय डॉक्टर डेविड लैक, नॉट बाय डार्विन. डार्विन ने खुद नहीं बोला था उनको डार्विन फिंचेस, डॉक्टर डेविड लैक ने बोला था. और एक बर्ड्स पे थे वो अलग अलग आइलैंड्स पे अलग अलग वैरायटीज के बर्ड्स उनको दिखे थे. दिस डार्विन कॉल्ड इट एज अ लिविंग लैबोरेटरी. वाला जो आइलैंड था गैलापागोस आइलैंड, इसको डार्विन ने लिविंग लैबोरेटरी बोला था. मतलब वैरायटी ऑफ स्पीसीज वहां पे मिला था. और फिर उन्होंने एक बुक लिखा था आफ्टर स्टडीइंग दिस फिंचेस बर्ड्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. यू ऑल रिमेंबर द नेम ऑफ दैट बुक. क्या नाम है उस बुक का? डार्विन ने जो लिखी हुई बुक है, किसी को याद है बच्चों? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. वो थियरी था. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द नेम ऑफ द थियरी. बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. क्या नाम है बुक का? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, रिटन इन द ईयर 1858, पब्लिश्ड इन द ईयर 1859. तो व्हेनेवर वी से मॉर्फो स्पीसीज, हमारे दिमाग में ये नाम आना चाहिए, डार्विन फिंचेस, जिनके बीक्स का शेप अलग अलग था. तो अलग अलग आइलैंड पे जो टाइप ऑफ द फूड अवेलेबल था वो अलग अलग था. तो उस हिसाब से उनके बीक्स अलग अलग शेप के थे. सम हैड अ लॉन्ग बीक्स, सम हैड अ शॉर्ट बीक्स, सम हैड पॉइंटेड बीक्स, सम हैड फ्लैट बीक्स. तो वो अलग अलग मॉडिफिकेशंस मिले थे अलग अलग आइलैंड वाले बर्ड्स में. और ये बर्ड्स सब फिंचेस बर्ड्स ही थे, बट दे वर नॉट एबल टू मेट विद ईच अदर. मतलब ये अलग अलग हो चुके थे रिप्रोडक्ट. ये कैसे हुए थे? बाद में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए. ठीक है. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन डिटेल. इवोल्यूशन पार्ट वगैरह में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. वैसे ही होता है एक और स्पीसीज जिसको हम लोग बोलेंगे what we'll call sibling species. See, what do you mean by this? Sibling species क्या होते हैं? जैसे हम लोग भाई बहन को बोलते हैं ना, siblings, brothers, sisters. Same is the case. Originate from same parent. Distinguish them from morphology. ये ऐसे स्पीसीज होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिखेंगे, मॉर्फोलॉजिकली सेम, but reproductively isolated. Reproductively isolated मतलब you cannot distinguish कि अलग अलग है स्पीसीज, पर वो एक दूसरे के साथ में मेट नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ में वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल अभी इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो एक ड्रोसोफिला नाम का इंसेक्ट होता है जिसके ऊपर बहुत सारा
स्टडीज किया गया है दिस वन ड्रोसोफिला। सुना है कि आप लोगों ने, ये एक इंसेक्ट है ड्रोसोफिला नाम का, जो आप लोग क्रोमोसोम्स, जीन्स, लिंकेज वगैरह वर्ड पढ़ोगे तो उसमें ये रेफरेंस आएगा। तो ये ड्रोसोफिला के दो स्पीसीज हैं जिनका नाम है ड्रोसोफिला पर्सिमिलिस। गूगल भी कर सकते हो आप और देख सकते हो ये वाला वर्ड ड्रोसोफिला पर्सिमिलिस, या फिर सिबलिंग स्पीसीज गूगल करो, इसी का पहला फोटोग्राफ दिखेगा आपको गूगल पे। ड्रोसोफिला पर्सिमिलिस एंड ड्रोसोफिला सुडोब्स्क्यूरा। ड्रोसोफिला सुडोब्स्क्यूरा, ये दो दिखते सेम है, एक्सटर्नली सेम है, मतलब वो मॉर्फोलॉजिकली सेम है, you can't distinguish, but they can't mate with each other because they are reproductively isolated. Did you understand the difference? They are reproductively isolated. Are you understanding this, kids? ठीक है? This meeting will end in 10 minutes. Join with the same ID again. All right, kids? Concept समझ में आया बच्चों? ये नाम important है. Expected question in your NEET examination. Sibling species, the example of sibling species. अब आगे बढ़ो चलो. Now we have got another types of species जिनको हम लोग बोलते हैं sympatric and allopatric species. Have you heard such names? बताओ मुझे, आपने ऐसा कोई नाम सुना है पहले? नाम? अरे बोलो बच्चों, सुना है कि नहीं सुना है? नो सर। ठीक है, अभी पढ़ते हैं। देखो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, सिम्पैट्रिक स्पीसीज एंड एलोपैट्रिक स्पीसीज। ये बेस्ट एग्जांपल है वापस फिंचेस बर्ड टू स्टडी दिस एलोपैट्रिक स्पीसीज या फिर सिम्पैट्रिक स्पीसीज पढ़ने के लिए। ये जो फिंचेस बर्ड्स है, ऑलरेडी आई सेड दैट दे वर लिविंग इन द मेनलैंड, साउथ अमेरिका में वो रहते थे, बट मे बी इन सर्च ऑफ फूड, फिर ऐसे ग्रुप ऑफ बर्ड्स, मे बी हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स वो माइग्रेट हो गए एंड दे रीच दिस आइलैंड। कौन सा आइलैंड था वो? गैलापागोस आइलैंड। Yes. ह्यूज आइलैंड, ग्रुप ऑफ 18 इन दैट 22 आइलैंड, जिसमें से 40 आइलैंड थे और 8 छोटे आइलैंड थे। तो एक ऑर्गेनिज्म को किस चीज की जरूरत होती है? ऑब्वियसली एनी ऑर्गेनिज्म नीड्स टू थिंग्स। एक चीज होती है फूड और दूसरा होता है उसका मेटिंग पार्टनर। तो अभी जब हंड्रेड्स ऑफ बर्ड वहां पे माइग्रेट हुए तो वो मेल फीमेल, मतलब वो पार्टनर की माइग्रेट हुए थे। नाउ व्हाट हैपेंड इज, ये एक बड़ा आइलैंड था, यू कैन से, यहाँ पे अभी these birds, some of the birds they settled on this island, some of the birds they settled on this island, some of the birds they settled on this island. पहले वो एक दूसरे के जैसे ही थे, but what happened after hundreds of years, बहुत सालों बाद में क्या हुआ कि इनको यहाँ से यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज उनके जो जो रिक्वायरमेंट्स थे यहाँ पे फुलफिल हो रहे थे। They were getting food, they had a partner with them, every required. बराबर ना? तो फीडिंग एंड ब्रीडिंग, एनिमल्स के दो ही जरूरतें होती है। They were fulfilled here on the same island. तो क्या हुआ, उन्होंने एक दूसरे के साथ में रिप्रोड्यूस करना शुरू किया, ठीक है? एंड आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ये अलग अलग दिखने लगे। They started looking different from each other, एंड अब ये इतने डिफरेंट हो गए कि नाउ इवन इधर का स्पीसीज और इधर का स्पीसीज एक दूसरे के साथ में मेट भी करेंगे तो भी वो पंखा बंद करो। कर सकते हैं। मोहम्मद अपना माइक ऑफ करो। मोहम्मद, देयर इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम योर साइड। बच्चा कुछ पूछना है क्या? डू यू वांट टू आस्क समथिंग? ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन जो मैं बोल रहा हूँ? बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया? आफ्टर मेनी इयर्स, मे बी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, यहाँ के बर्ड्स अलग अलग दिखने लगे और इतने अलग दिखने लगे कि नाउ दे वर नॉट एबल टू इंटरब्रीड, ठीक है? या इवन दो दे वर एबल टू इंटरब्रीड, दे कुड नॉट प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इनका जो ऑफस्प्रिंग रहेगा वो स्टेराइल रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये अलग स्पीशीज हो गया, ये अलग स्पीशीज हो गया, और
ऐसे स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीसीज विच आर geographically isolated. Those species which are geographically isolated as well as reproductively isolated. Geographically isolated as well as reproductively isolated are called as allopatric species. अब अगर हम लोग एक ही आइलैंड की बात करेंगे, now you consider this whole as a one island, ठीक है? तो यहाँ पे भी अभी कुछ बर्ड्स थे ऑलरेडी, अभी हम लोग अभी बोल रहे हैं कुछ बर्ड्स हैं. Now they were also happy, है ना? They had enough food available, they had a partner available. फिर after hundreds of years you can say, इनमें कुछ भी म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन हो गया तो ये अलग दिखने लगे अभी, और ये इतने अलग हो गए कि now they were not able to mate with this. अभी इन दोनों में मेटिंग पॉसिबल नहीं था, ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं था. मतलब क्या हो गया अभी, they also got reproductively isolated, but उनका geographic area सेम ही है. You getting me what I'm saying, children? बोलो बच्चों, उर्वशी समझ में आ रहा है क्या? Those live in same geographic area, but fail to interbreed. Living in same geographic area, but reproductively isolated. I hope now you all understood this. ऐसे स्पीसीज जो एक ही ज्योग्राफिक एरिया में रहते हैं and they are reproductively isolated are called as a sympatric species. और जो अलग-अलग ज्योग्राफिक एरिया में रहते हैं and they fail to interbreed among themselves, they are called as allopatric species. Any doubt about this, children? Tell me. Followed everyone? Yes, sir. No, sir. बेटा बाकी लोगों को यश, यू गेटिंग दिस बच्चा? कंफर्टेबल हो? Yes, sir. बेटर है. तो ऐसा ही अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है स्पीसीज का. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड. एक डेफिनेशन याद रखना है जो हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ी थी. ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स which are capable of interbreeding among themselves to produce fertile offspring is known as a species. और फिर ये अलग अलग स्पीसीज के टाइप्स हम लोगों को याद रखने होंगे, ठीक है? तो ये जो अलग हो गए रिप्रोडक्टिव स्पीसीज का मतलब म्यूटेशन है. रीजन है उसका म्यूटेशन, मतलब इनमें क्रोमोसोम्स का नंबर बदल गया. बदल गया मतलब वो ज्यादा भी हो सकता है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में इंक्रीज होता है. आप लोगों को एवोल्यूशन चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में, तभी ये स्पीसीज का टाइप्स वापस पढ़ोगे आप, और एक्चुअली नंबर कैसे इंक्रीज होता है क्रोमोसोम्स का वो भी पढ़ोगे. उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी. द प्रोसेस बाय व्हिच द नंबर इंक्रीजेस इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी. सो इट इज नॉट देयर फॉर यू पीपल, बट इन 12th स्टैंडर्ड यू विल बी लर्निंग दैट. इरेज करो ना इसको, मैं लिख लिया आप लोगों ने. एवरीवन कॉपी डाउन. चलो आगे बढ़ो. अभी ये हो गया पहला यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़े हैं. इट इज स्पीसीज, है ना? कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग स्पीसीज को? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि हमेशा हम लोग क्लासिफिकेशन स्पीसीज का ही करते हैं, ठीक है? बट इवोल्यूशन जब होता है तो किसमें होता है? यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज ऑलवेज पॉपुलेशन. याद रखो, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज नॉट द स्पीसीज. यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज ऑलवेज पॉपुलेशन. ठीक है बच्चों, दिस मच इज क्लियर. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, which is going to be your next category in the hierarchy of taxonomy, which is about this genus. So ready for it, everyone? Shall we explore this? तो कैसे बोलेंगे हम लोग जीनस, या कैसे एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे जीनस को? So genus is nothing but what? It is higher order category above species. या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, it is a group of related species. हर एक का डेफिनेशन ऐसे आएगा. So it is a group of related species and it is the higher category. इसके ऊपर वाला कैटेगरी, ये स्पीसीज के ऊपर वाला. इट इज ए हायर कैटेगरी
इसके ऊपर या कैसे हम लोग बोलेंगे इट इज हायर कैटेगरी अबव स्पीसीज. Do you agree with this children? Because हम लोग हमेशा ascending order में जाते हैं ऐसे स्पीसीज से किंगडम की तरफ. तो अभी स्पीसीज हो गया तो जीनस आएगा, राइट? तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द मीनिंग. डेफिनेशन जीनस का क्या है वो समझ में आया? यस सर. ठीक है. दिस मीटिंग इज अबाउट टू एंड नाउ. यू पीपल कम बैक, वी विल कंटिन्यू विद दिस. ठीक है, आप लोग वापस आ जाओ, हम लोग फिर यही चीज कंटिन्यू करेंगे. मे बी 10-15 सेकंड कुछ बचे हुए इस मीटिंग में. So I just end it.